to start from we're going to start from the biological theories, the positivist theories. Recently, we discussed the social disorganization theory and the classical theory. I also gave you some assignments, which I will check in the next class when I will come to the academy. So we'll start from the positivist theories. So what is positivism? Anyone can answer it? So what is positivism? What is positivism? So you can participate in the discussion. No one? Okay. So आप लोग इसमें participate नहीं करेंगे? Sir, no idea. No idea. Okay. तो यही मैंने पूछना था कि कुछ मुझे आंसर पता लगे तो मैं आगे जाऊँ. So positivism is a branch of science like which deals with the scientific study of anything. So if we talk about the criminology, so positivism is like using scientific ways like objective analysis, empirical evidence based on observation and theories, and then uh, making hypotheses. So we conclude anything. So this conclusion, this observation, and the results, it comes under the purview of positivism. So the theories that we have studied so far are the classical theories. So in classical theories, it's not about the objective nature, it's about the subjective nature. Subjective nature ke like it's pain or player, ke either pain overpowers the player, so the criminal will not commit the crime, or the player overpowers the pain, so criminal will commit a crime. So ये चीजें थी आपकी classical school of thought में. So when we move to the positivist school of thought, in positivist school of thought, we deal with the objective analysis, like empirical evidence कि अगर ये criminal है, so we find the roots कि क्या there are biological factors, yeah, there are some social factors, or there are psychological factors which have resulted in the crime. So इस चीज को कहते हैं positivism. So in the 19th century, criminologists began to move away from the classical assumptions, especially the assumption of free will. That is important. कि क्या होती थी, consider किया जाता था कि the people or the criminals commit crime because of the free will. Okay, and toward a more scientific view of human behavior. So what is a scientific behavior? So increasingly popular view among criminologists of this period was that crime resulted from internal or external forces inspiring an individual, biasing, or even completely determining their behavior. So what does this mean? अजान हो रही है, जरा वेट कर लें.
Okay, so we were talking about the positive view, like what is positivism. So the positivism became known as determinism, and its adherents were known as positivists. So it is used to designate the extension of the scientific method to social life. Like uh, we talk about the social culture, the social behavior of people, and we try to deal with it in terms of scientific manner. Like what is scientific manner? For example, if anyone behaves in a certain way, so we try to deconstruct it and we try to find out what is the base of this. Like why he is behaving or she is behaving in such a way. Or if there is a culture in a certain society, so how the culture was groomed. So we ignore the moral values, like the morals or the perceptions of any individual. We just consider the system and we take it as a whole, and we say that the system is established, so anyone that comes under the system obeys the system. So this is called your scientific behavior. Like science cannot be changed, so that is why we try to study the criminal behavior according to scientific manner. So they are more concerned with discovering the biological, physical, or sociological, psychological or sociological determinants of criminal behavior. Like what is the behavior like? They try to find out either it is the biological setup in a person or the social factors, or maybe the psychological burden on a person that is resulting in a crime. So there are different school of thoughts. So what are the assumptions of positive school of thought? Similar assumptions we have studied for the classical school of thought, like same some kind of assumptions we have studied. So there are certain assumptions related to the positive school of thought. What is the first assumption? It is related to the human behavior is determined and not a matter of free will. Again, as I elaborated, that this is determined. So which are the factors which are used in order to determine this behavior? So these are the social, maybe biological or psychological. And then the criminals are fundamentally different from non-criminals, like on the basis of their setup, on the basis of like on the basis of their behavior, they are different. And social scientists can be objective in nature. So again, what does objective mean? Objective mean like we talk about the empirical data, जिसमें आपके पास प्लस माइनस का या डाटा इनपुट करके जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव होता है जिसमें आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं, जिसमें आपके जो अपने आइडियाज आ जाते हैं, परसेप्शंस आ जाती हैं, उसको कहते हैं सब्जेक्टिव. And crime is frequently caused by the multiple factors. So these are some of the postulates of a positive school of thought. So whenever they give a question, when we need to compare nature versus nurture, so in nurture, we need to talk about a positive school of thought. So we can mention some of the key postulates, or they can give us a separate question related to the positive school of thought, compare the classical school of thought with positive school of thought, or the biological school of thought, whatever the theory they give. We need to write these postulates, these assumptions, because we need to deal the subject scientifically. So what are the positivist approaches? So most criminologists believe that criminal behavior is the product of a complex interaction between biology and environment or social conditions. So it is actually the end result when your biology adds up, your environment adds up, or social conditions add up. So the behavior that result, it is called the criminal behavior. In biology, we have genetics. Like what are the genetics conditions? We will see a superhuman atavistic person as well. So now we move to the biological theories. So biological theories, so they are based. So what is the base of this biological theory? They are based on the behalf that criminals are physiologically different from non-criminals. Like their physique, it is separate from the non-criminals. So we will see different different theories of this theory. So the cause of crime is biological inferiority. So they say that we have a human, we have a normal human, and we have in and we have an inferior human. So in inferior human, there are some physiological differences. That is why he can commit a suicide, or there are more tendencies, there are more genes in a person that he can commit so he can commit a crime. So according to biological theories, biological inferiority is a criminal innate physiological makeup, and
physi- uh, innate physiological makeup produces certain physical or genetic characteristics that distinguish criminals from non-criminals. Again, the same thing that I already explained to you. Okay, so now we talk about the modern biocriminology. So in modern biocriminology, we deal with the behavior like chemical, mineral, or vitamin deficiencies in the diet. So we say that the criminal behavior, what is the root cause, or there are numerous biological factors that are associated with delinquent behavior or criminal behavior. So maybe it is due to the vitamin, chemical, or mineral deficiency in the diet, or diet that are high in sugar, carbohydrate, or these are some of the biological issues they have mentioned, that if we have these issues in a person, so the person may commit a crime. So there were three main biological thinkers that we need to know, और उनका आपको नाम भी पता होना चाहिए और उनका era भी पता होना चाहिए. First one is Cesare Lombroso, and then Rafael Garofalo, and then Enrico Ferri. So these three were the prominent uh, criminologists, और इन्हीं की वजह से जो है वो पॉजिटिविस्ट थ्योरी जो है वो स्टार्ट होती है. मतलब बायोलॉजिकल इन्होंने थ्योरी स्टार्ट की थी और इसकी वजह से पॉजिटिविज्म स्टार्ट होती है. एनीवन इज सेइंग एनीथिंग? सर जी जी सर बोलें. मॉडर्न बायोलॉजी जो है थ्योरी है सर, इसकी कोई लाइफ एग्जांपल दें सर, अब ताकि थोड़ा और मजीद क्लियर हो जाए. मॉडर्न बायोक्रिमिनोलॉजी की जी, कोई लाइफ एग्जांपल हो, so it is very easy to understand if you व्हाट डू यू can give मीन the द लाइफ एग्जांपल? लाइफ नहीं, एग्जांपल मींस कोई केस हो उसके रिलेटेड, कोई क्रिमिनल की, इसने कोई बंदे ने क्राइम किया हो और उसमें मॉडर्न बायोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व हो उसके अंदर. यार इसके अंदर आप ये देख सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल अब मॉडर्न बायोक्रिमिनोलॉजी क्या कहती है कि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोई डेलिक्वेंट बिहेवियर होता है. ठीक है, अब इनमें से देख लें कि ब्रेन डिसफंक्शन है किसी का, या किसी के अंदर ये डेफिशिएंसीज है इन द डाइट. सो इट मींस दैट कि उसकी जो ग्रूमिंग है, जो उसका जो साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल सेटअप है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है. So he may have some tendencies to commit a crime. For example, he may commit robbery or assault or arson or any kind of thing. So ये different factors हैं जो बताते हैं कि for example अगर आपके पास कोई child delinquency है, मतलब जो children हैं जो मतलब ये करते हैं कोई crime commit करते हैं, और अगर आप उनके वो प्रोफाइल स्टडी करें तो कई केसेस में इस तरह नजर आता है कि दे हैव सम डेफिशिएंसीज इन देयर डाइट or in their physiological setup. So उसकी वजह से maybe they have committed a crime. So this is actually the basis of your modern biocriminology. ठीक है, समझ आ गई अब? ओके सर. अच्छा, इसमें we have three biological explanation of criminal behaviors and these three are important. We need to know the name of the theories given by these persons. So Cesare Lombroso, he presented the theory of genetics and criminology. And then William Sheldon, he presented the theory of constitutional or body type determinants. And then Wilson and Hunstein, इसकी theory है constitutional interactionist view. So we will study all these theories in detail. So अगर वो आपसे कहते हैं कि write in detail the biological theories, so they do not mention only one biological theory. So we have multiple biological theories. So first we start from Cesare Lombroso. So what is the name of Cesare Lombroso book? It is Criminal Man. It is important. It is important because of your MCQs, as well as you can give the reference of his book Criminal Man. So what he presented that the criminals could be identified by their physical characteristics. और उसने उस person को क्या कहा था? He called this group as atavistic man. So atavistic man उसने कहा था कि उनकी कुछ physical brought up में कुछ इस तरह के differences होते हैं, कुछ इस तरह के abnormalities होती हैं, जिसकी वजह से आप एक criminal को easily identify कर सकते हैं. He first argued that criminals were a throwback to a more primitive type of brain structure and behavior. Primitive type का मतलब क्या होता है? पुराने जमाने के. He argued that the physical shape of the head and face determine the born criminal. उसने born criminal का बताया था कि पैदाइशी कुछ लोग जो हैं वो criminal होते हैं. Why?
on the basis of their physique. So Lombroso studied and measured the bodies of executed and deceased offenders, as well as examining living inmates to locate physical differences or abnormalities. मतलब उसने अपनी जो study थी, he based his study on the scientific research. So that is why we call this theory as positivist theory, because he studied different case studies. जो उसने अपने ज़माने में he studied different things, and then he concluded that कि जो criminals हैं, they have a kind of atavistic personality. So he claimed to have found a variety of bodily features predictive of criminal behavior. For example, the criminals may have long arms, or they have large teeth, ears lacking lobes, or loads of body hair, whatever they are. Also identify characteristics of a particular type of offenders. So ये देखिए आप, ये उसने दो examples दिए हैं, illustrations of Lombroso जो उसने delicacy show किया, physical defects. So there are two type of person. So whom do you think may commit a crime? So either this person or this person. Obviously the left one, because he has a long face, ठीक है, और उसका जो है वो brought up, और उसकी जो eyes हैं, जो उसके ear का structure है, so maybe due to that he presented that this can be a criminal and this cannot be a criminal. So ये positivist theory से now we are having other type of theories. अब इसमें इसकी कोटेशन आई अगेन मेंशन के जब भी हमने थ्योरीज करनी है, सो यू आल्सो नीड टू नो अबाउट द references about their quotations of different theorists. So Lombroso states that at the sight of that skull, I seem to see all of a sudden light up as a vast plain under a flaming sky. The problem of nature of the criminal, an atavistic being who reproduces in his person the ferocious instincts of primitive humanity and the inferior animals. अभी उसने क्या बताया, उसने कहा है कि उसने जो है फिजिकल उसकी फिजिक देख के उसने ये कमेंट दिए हैं कि एट द साइड ऑफ दैट स्कल आई सीम टू सी ऑल ऑफ अ सडन lighted up as a vast plain under a flaming sky, the problem of the nature of the criminal, an atavistic being. So ये जो उसने quotation बताई है, ये उसने बताया है कि when he saw a person and he identified these defects, so he concluded that this can be a criminal person, or the personality is an atavistic personality. So essentially Brusso believed that criminality was inherited. So ये biological factors उसने बताए हैं, and that criminals could be identified by physical defects that confirmed them as being atavistic or savage. So ये दो quotations हैं of Lombroso that you can write. So what is the significance of this theory in contemporary world? So today, neurocriminology draws on more of Lombroso's theories to explore causes of criminal behavior. Neurocriminology क्या होती है? जो neurology पे base करती है, neurons पे जो study करती है. Examining, for example, whether or not brain injuries or genetic abnormalities can lead to criminality, or whether violence can be caused by a clinical disorder. ठीक है? So this is the Sister Lombroso view. So उसकी कौन कौन सी physical characteristics हैं, हमने यहाँ पे बताया कि atavistic personality, atavistic person है. So he may have the asymmetry of the face. There may be eye defects and abnormalities, or excessive dimensions of jaw and cheek bones, ears of unusual size or very small, or ears that stuck out, lips fleshy, swollen, and protruding, excessive length of arms. So these all are the physical characteristics of atavistic man. ठीक है? ये you can give these all characteristics in the form of a chart as well, or a table as well. So ये देखें examples. ये सारे जो हैं वो atavistic personalities हैं. ठीक है? They may have long arms, or any of the given abnormality present in them. So he also shed light on female offenders. So he also looked at a female offenders and argued that most women are not criminal, जो पहले भी होता था, but those that are usually occasional criminals, and but some women are atavistic criminals. They are harder to detect than men, and they are more cunning and more vicious. So ये उसका जो view है females पे, लेम्ब्रूसो का. So what are the major principles of biological theories again? So brain is the organ of the mind and the locus of personality. जो brain है आपका वो सारा कुछ control करता है.
सो जो हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो जेनेटिकली बेस्ड होता है. सो यू सी दैट इफ यू हैव टू लाइक ट्विंस मे बी, सो एक के अंदर आप देखते हैं कि ही हैज अ डिफरेंट नेचर, अदर हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर. सो ऑल्दो बोथ आर ट्विंस, सो जो अपेरेंटली दे शुड हैव द सेम काइंड ऑफ बिहेवियर, बट दे हैव डिफरेंट जेनेटिक सेटअप. सो उसकी वजह से दे बिहेव डिफरेंटली. So observed gender and racial differences in rates and types of criminality may be at least partially the result of biological differences between the sexes or between racially distinct groups. यानी अगर आप देखते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ब्लैक, अगर इसको यूएस की बात करें तो वहाँ पर स्टडी करते हैं कि the black people are more prone to commit a crime. So why they trace their biological setup? They say that this is due to their biological genes or genetic setup. So this can be said according to biological theory. The basic determinant of human behavior may be passed on from generation to generation. Like कि अगर आपने वो पढ़ी है द ओल्ड मैन एंड द सी, किसी ने बुक पढ़ी हो? एनीवन हु हैज जी रेड सर। ओल्ड मैन एंड द सी? उसका यस सर। ऑथर कौन था? ऑथर नहीं याद, अर्नेस्ट हेमिंग्वे. स्टोरी याद है। नहीं, उसकी स्टडी नहीं, स्टडी में तो वो बताता ना, वो बताता है पूरी, ठीक है. लेकिन अर्नेस्ट हेमिंग्वे इज अ क्लासिकल, जो उसकी केस स्टडी है इस बायोलॉजिकल थ्योरी में, कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे कमिटेड सुसाइड, ठीक है. एंड देन इफ यू ट्रेस द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, हाँ जी यही नाम है. तो अगर उसकी आप बायोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रेस करेंगे तो हिज फादर आल्सो कमिटेड सुसाइड, his grandfather also committed suicide, and then he committed suicide. So it means that genetically they have tendency to commit a particular type of crime, or it can called as a vice. ठीक है. So ये एक एग्जांपल दे सकते हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे. जी सर। इसके अलावा आपको मैंने इन लोगों को कहा था कि 10 एटलीस्ट केस स्टडी आपने तैयार करनी है, और उन केस स्टडीज को हमने इन बायोलॉजिकल इन थ्योरीज जो भी हम स्टडी करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमने मोल्ड करना है. वो आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है असाइनमेंट? जो आपके पास जो फेमस केसेस हैं, जो हाईलाइटेड केसेस हैं, उनको आप प्रिपेयर करें. उनके जो ऑफेंडर्स हैं, उनके जो क्रिमिनल्स हैं, और उनके जो विक्टिम्स हैं, उनके उनके केसेस को स्टडी करें, उनकी प्रोफाइल बनाएं, और देन वी कैन लाइक एनालाइज देम अकॉर्डिंग टू दीज थ्योरीज. और यही आपने करना है पेपर में भी. सर थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोफाइल कैसे बनानी है या केस स्टडी कैसे कलेक्ट करनी है, जैसे सर यार हाईलाइट। एक फॉर एग्जांपल, एक आपके पास एक क्रिमिनल है, ठीक है. सर ये मैं, लेटेस्ट केस ले लें नूर मुकद्दम का सर, जो हाँ उसके मर्डर। अंदर क्या क्या चीज़ है मुझे बताएं जरा, उसके अंदर क्या बैकग्राउंड है उस केस का? सर वही जो जाफर है, उसने सर उसको बी हेड कर दिया था, पहले टॉर्चर किया सर काफी, एंड पे सर उसको बी हेड कर दिया। अच्छा, क्या नाम है जी क्रिमिनल का, जो भी नाम है उसका, ठीक है. जाफर नाम है सर कोई। अब इसमें आप देखें, उसकी आपने प्रोफाइल करनी है, क्रिमिनल प्रोफाइल बिल्ड करनी है. आप उसका पहले फैमिली बैकग्राउंड देखें, ठीक है. जी सर। उसके बाद आप उसका, ये सारा केस में होगा, ये जो तफ्तीश वगैरह इन्वेस्टिगेशन होती है, वो इन्वेस्टिगेशन प्रिंसिपल्स भी हमने पढ़नी है इसमें पार्ट 3 में. जिसमें आप देखेंगे फैमिली बैकग्राउंड देखनी है, आपने उसका सोशल स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, कि उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है. फैमिली बैकग्राउंड के बाद आप उसमें देख लें उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, कि वो उसकी स्कूलिंग है या क्या चीज़ें हैं. सोशल बैकग्राउंड उसका देखें. उसके बाद उसका देखें कोई मेडिकल हिस्ट्री है उसकी, ठीक है, मतलब उसका कोई ट्रोमाज हुए हों, जी या सर है कोई उसके साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी उसको। हाँ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है. ये चीज़ें आप लोगों ने इसमें देखनी है. एक इसको चार्ट बनाए ना, इसको चार्ट बनाए, इस तरह लिखें. इसमें 4-5 चीज़ें हैं, ठीक है. बायोलॉजिकल फैक्टर्स में देखें उसके पेरेंट्स का कोई चीज़ है, ठीक है. इसके अलावा उसमें साइकोलॉजिकल देखें उसके अंदर कोई चीज़ है. इसके अलावा उसका सोशल लर्निंग थ्योरीज, जो भी हम थ्योरीज में अभी देखेंगे, वो देखें कि वो उसके अंदर चीज़ें हैं या नहीं है. ये आपने प्रोफाइल एक इधर इधर सेपरेट भी लिखनी है बुलेट के फॉर्म में, और इस तरह एक चार्ट भी बनाना. तो ये आपका केस प्रिपेयर हो जाएगा टू एनालाइज. आपने उसको सोल्यूशन तो नहीं बताना ना, मतलब आपने उधर जाके उसको पनिशमेंट तो नहीं देनी.
you need to study the case कि ये crime commit हुआ है, and according to this theory this criminal profile can be explained, ठीक है। और ये थ्योरी उस क्रिमिनल प्रोफाइल को एक्सप्लेन कर रही है। अब इसमें आप देखें ये जो नूर मोहम्मद का जो भी केस है, इसमें आप उसमें बता सकते हैं कि इसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो वो हम आगे सिगमंड फ्रॉड की थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें इड ईगो सुपर ईगो पढ़ेंगे, तो आप उसको उसके ऊपर इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और केसेस देखें जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ रहे हों, जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स आ रहे हों। इसके अलावा आपको न्यूमरस केसेस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें सोशल लर्निंग है, लेबलिंग थ्योरी है, ठीक है, सोशल कंट्रोल थ्योरी है। तो इस तरह के हमने उसको प्रोफाइल देखनी है। अब समझ आइए कैसे करनी है आपने। जी जी सर, बिल्कुल आ गई, थैंक यू। तो इसमें आप लोग आपस में जो है वो डिस्कशन करें, अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करें। एटलीस्ट आपके पास 10 केस स्टडीज हों जो आपको फाइनली याद हो, ठीक है। और सर ये जी एंड तक काम आती रहेंगी हमारे, ये 10 केस स्टडीज हाँ हम हाँ बनाए। बिल्कुल। ये आपके पास अगर इफ यू हैव 4 क्वेश्चंस, so you can give these you can incorporate all of these examples in your question paper, ठीक है। कहीं भी आप उसको इजीली फिट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है सर, ओके। क्योंकि यू हैव अ फिजिकल थिंग, यू हैव अ कंक्रीट थिंग ना आपके पास, यू डोंट हैव एनी ऑब्जर्वेशन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिमिनोलॉजी एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। So we have objective analysis. So and if they ask us about the scope of criminology in Pakistan, or the juvenile delinquency, or the criminal justice system, or the criminal behavior, if they ask us, तो उसके अंदर आप इजीली इसको incorporate कर सकते हैं। और if they ask us, we will study in the next portions कि क्रिमिनल वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर बताएं या इस तरह की चीज़ें बताएं, उसमें आप फिर बताएंगे कि ये केस था जब इन्वेस्टिगेशन हुई इस तरीके से। वो अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से तरीके हैं जिससे इन्वेस्टिगेशन होती है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई और उससे हमें पता लगा कि इसके अंदर जो थे ये डिफेक्ट्स थे, बायोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल डिफेक्ट थे, ये इसका सोशल डिसऑर्डर था, कुछ भी चीज़ें थी, तो उसको आप इजीली उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो व्हाई आई एम सेइंग 10, because you don't need to repeat one example multiple times, so you should have many examples to relate in your paper, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने करनी है, इसको काइंडली आप लोग जो है वो कर लें और इसके नोट्स बना लें। याद तो अभी मैं आपको करने का नहीं कह रहा। जी ठीक है जी और सर, कोई ओके। क्वेश्चन आपका। केस की सर एक्सप्लेनेशन नहीं इतनी जरूरी, सिर्फ क्रिमिनल प्रोफाइल बनानी है बस। आवाज़ कम आ रही है आपकी, जी बताएं। सर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी केस है उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, सिर्फ क्रिमिनल की प्रोफाइल बनानी है। हाँ हाँ एक्सप्लेनेशन आपने क्या लिखनी है, एक्सप्लेनेशन वो आप लिख लें कि उसका जो है वो फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में करेंगे ना, कि उसके जो है एक क्राइम है उसकी आपने कॉजेशन देख ली, ठीक है, ये कॉजेशन उसकी ये है, लेट्स से कॉजेशन के अंदर ये थ्योरीज एक्सप्लेन कर रही हैं। अब आप उसके देखें कि अगर आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का पढ़ना है, तो उसमें आप देखेंगे कि उसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कोई प्रोसीजर होते हैं, उसके अंदर स्टेप्स होते हैं कि किस तरह उस पर FIR हुई, ठीक है, व्हाट वाज द प्रोसीजर, उस पर कौन कौन सी आपने जो है वो आर्टिकल्स लगाए। अब उसके बाद उसको जो है पनिशमेंट क्या हुई, उसको कौन से प्रिजन में रखा गया, और उसके जो साथ थे उसके जो क्रिमिनल्स थे जो उस प्रिजन में थे, उनकी मतलब दे हार्डकोर क्रिमिनल्स और दे आर सॉफ्टकोर क्रिमिनल्स। मोस्टली दे आर हार्डकोर क्रिमिनल्स, मतलब आप जुवेनाइल्स को हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ रख देते हैं, सो दे लर्न फ्रॉम देयर जुवेनाइल्स। बट व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू like know about their punishment, what was the punishment, क्योंकि जब आपने उसको कंक्लूड करना है, सो वी ऑल्सो नीड टू डिस्कस के हमने वो डेटरेंस लेके आनी है सोसाइटी में, ताकि इस तरह का क्राइम दोबारा ना हो, ठीक है। आपने उसमें करेक्शन करनी है, आपने उसको रिहेबिलिटेट करना है। तो ये चीज़ें मतलब ये पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है इस तरह की आपको चीज़ें मिलें। पाकिस्तान के केसेस में आपको हार्डली अगर ये प्रोफाइल भी पूरी मिल जाती है, सो डैट इज़ वेरी गुड, because you will not find about the type of punishment, why the punishment is given to him, और उसको जो है वो आगे रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया जा रहा है, nothing, there is nothing going on for that. But what you can find out, you can just find out the criminal profile, and that will be enough for you. सर ये जो ओके हमने सर। केसेस कलेक्ट करने हैं, जरूरी है कि सिर्फ पाकिस्तान के क्रिमिनल केसेस ही हों कि नहीं इंटरनेशनल भी हम कर आपने सकते बाकी इंटरनेशनल भी कर सकते हैं, आप जब उसको कंपैरिजन में करेंगे कि रिहेबिलिटेशन वहाँ पे उसका उन्होंने फॉलो अप किस तरह लिया उस सोसाइटी में से, मतलब उस फैमिली में से बाकी लोगों के साथ। आपने देखना होगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि बाहर वो क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई केस इस तरह का जिस तरह नूर मोहम्मद के इधर केस है, इस तरह का कोई केस फाइंड करें
किसी और जुडिशियल सिस्टम में, और उसको देखें कि उसको उन्होंने किस तरह सॉर्ट आउट किया है, उसकी प्रोफाइलिंग कैसे की है और बाकी, क्योंकि द मेन टास्क ऑफ क्रिमिनोलॉजिस्ट इज टू प्रिवेंट द क्राइम एज वेल, कि उन्होंने उसको देखा है, कि उन्होंने ट्रेस आउट किया है फैमिली उसकी क्या है या उसका सोशल सर्कल क्या है, कि मे बी द पर्सन इन देयर सोशल सर्कल में आल्सो कमिट अ क्राइम, तो उन्होंने उसको कैसे प्रिवेंट किया, ये आ जाती है क्रिमिनल इंटेलिजेंस के अंदर। लेकिन पाकिस्तान का करने दैट विल बी सफिशिएंट इनफ। ठीक है अगर सर। आपके पास टाइम है तो भाई का देख सकते हैं आप, बट ओके आई सर। डोंट थिंक सो दैट इज इजीली अवेलेबल। ठीक है सर। ओके, सो इज इट क्लियर कि मेजर प्रिंसिपल्स सर क्या हैं बायोलॉजिकल थ्योरी के? यस। सर जो केस होगा वो रिनाउंड होगा या कोई भी हो सकता है, मतलब? ट्राई टू फाइंड द रिनाउंड केसेस, क्योंकि रिनाउंड केसेस का जो है वो पता होगा उसको, एग्जामिनर को भी, ठीक है, जी थैंक यू। क्योंकि इसमें काफ़ी आपके केसेस हैं। इसमें तो कई केसेस सेक्सुअल असॉल्ट पे हैं। इसके अलावा ट्राई करें कोई और केसेस फाइंड करना, मतलब जो रोबरी से रिलेटेड हो या थेफ्ट हो या आर्सन हो, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आपके पास कॉमन भी होनी चाहिए, क्योंकि हार्ड कोर क्रिमिनल्स तो कम हैं। इसके अलावा जो लो कोर क्रिमिनल्स हैं, वो अगर आप चार्ट बनाते हैं तो वो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। हर कोई कर लेगा तो आप लोग जब अपना डाटा शेयर करेंगे, यू विल हैव अ लॉट ऑफ डाटा फॉर दैट। ओके, सो आफ्टर Lambruso we have a body type determinants for constitutional determinant theory। अब जिस तरह हमने जेनेटिक क्रिमिनल थ्योरी पढ़ी है बायोलॉजिकल, जिसमें लेम्ब्रूसो ने प्रेजेंट की है थ्योरी, उसके बाद आपकी है कॉन्स्टिट्यूशनल और बॉडी टाइप डिटर्मिनेंट थ्योरी, विच वाज प्रेजेंटेड बाय विलियम शेल्डन। अब इसमें क्या कहता है कि ये so he used body measurements technique to connect body type with personality and outline three basic body types and associated temperaments and personalities। मतलब उसने तीन इस तरह की बॉडीज प्रेजेंट की हैं कि कुछ कौन सी इस तरह की बॉडी टाइप्स जो हैं वो क्राइम कमिट कर सकती हैं, कौन सी नहीं कर सकती। अब लेम्ब्रूसो ने क्या किया था, उसने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी थी कि ये उसमें होनी चाहिए, लेकिन शेल्डम ने उसको फर्दर उसको स्क्रूटनाइज किया है थ्री टाइप्स में, और उसने बताया कि थ्री बॉडीज इस तरह की हैं जो कि उनमें से कुछ क्राइम कमिट कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती। अब एक बॉडी टाइप है एंडोमॉर्फिक, that is fat and soft, like the people who are fat and soft tend to be sociable and relaxed. And there is ectomorph, thin and fragile, these people are introvert and restrained. And then there are mesomorph, muscular and hard and tend to be aggressive and adventurous। तो ये आपको नजर आएंगी, ये एंडोमॉर्फ हैं, सॉफ्ट हैं, फैटी हैं। लेकिन ये कौन से हैं? ectomorph, thin and fragile, introvert and restrained. But these mesomorph, so you see that these people, they are a type of aggressive and they are adventurous. So he used correlational study found that many convicts were mesomorph and they were least likely to be ectomorph। अब आपने क्या करना है, अब आपने किसी की क्रिमिनल प्रोफाइल करनी है तो आपने उस पर बॉडी टाइप भी देखनी है उसकी, ठीक है। अब जैसे नूर मोहम्मद के केस में आप देख लें, उसकी बॉडी टाइप देखें, आइदर इट इज एंडोमोर्फ, आइदर इट इज मीजोमोर्फ और आइदर इट इज एक्टोमोर्फ। अगर वो मीजोमोर्फ है तो उसमें ये बताएंगे कि बायोलॉजिकल थ्योरी भी जो शेल्डम ने प्रेजेंट की थी वो भी इसके ऊपर जो है वो क्या हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है। अगर वो नहीं हो रही तो वो उसमें आ जाएगी, आपकी लिमिटेशंस में आ जाएगी या क्रिटिक में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी थ्योरी यूनिवर्सल नहीं होती। हर थ्योरी के अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। अब केस स्टडीज कई आपकी थ्योरीज के सपोर्ट करेंगी और कई केस स्टडीज थ्योरी की अगेंस्ट में जाएंगी। तो इसमें ये थ्योरी के, अगर मैं आई डोंट नो व्हाट इज द फिजिक ऑफ जो उसका जो है क्रिमिनल, बट इफ इट इज गोइंग अगेंस्ट इट, सो आप उसमें कहेंगे कि ये शेल्डम की थ्योरी जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। नॉट ऑल क्रिमिनल्स हैव लाइक दीज बॉडी शेप्स, so maybe endomorphic personality people may also commit a crime as well, ठीक है। so it is not a universal theory, so you can write it in the limitation as well। so limitations वही मैंने mention की हुई है कि not all the mesomorphic are criminals and not all criminals are mesomorphic। so when we use a few, all or none categories, we force on nature and oversimplified scheme। मतलब क्या कर रहे हैं, we are trying to making things really simple कि ये mesomorphic है so ये crime commit कर सकता है, but it is not a universal case, ठीक है। so these are very
few examples, not a universal case. So when physique is proposed as direct cause of criminal behavior, further problems may emerge, and even if there is a correlation between these two, it does not necessarily mean that one causes the other. So that is the limitation. ये एक theory थी जो आपकी book के अंदर course के अंदर है, तो मैंने आपको explain कर दी है. Then there is constitutional interactionist view. अब इसके अंदर क्या है, ये बायोलॉजिकल थ्योरीज को भी लेता है और ये सोशल थ्योरीज को मर्ज करके एक अपनी थ्योरी प्रेजेंट करता है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेक्शनिस्ट व्यू. So these were the two philosophers. उन्होंने book लिखी है Crime and Human Nature, and they proposes three factors that contribute to crime. So which are the three factors? One is the social environment, in which environment they are living. So if the opportunities are available, if there is no strain, or if there is no physiological or psychological disorder, so crime आपको environment अच्छा मिल रहा है, so crime may not be committed. And then he talked about family relation. So this is the second factor. Parents who are uncaring, inconsistent in the treatment of their children, or unskilled in dispensing rewards and punishment contribute to the eventual criminal behavior of their children. And then he talked about the biological makeup. It is the determinant and the most controversial. Among the specific qualities that they see as at least partially hereditary and an influential are gender, intelligence, impulsiveness, and body type. So ये आपके थर्ड उसमें फैक्टर है आफ्टर द फर्स्ट टू फैक्टर्स. तो उसने ये क्या किया इस थ्योरी में, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेक्शनिस्ट व्यू में, जो विल्सन एंड हर्नस्टीन ने बताई है, इसने ये तीनों को मिक्स कर दिया, मतलब फैमिली को, सोशल लाइफ को और बायोलॉजिकल मेकअप को. एंड इफ वी हैव ऑल दीज थ्री थिंग्स, सो द पर्सन में कमिट अ क्राइम. अब ये मॉडर्न बायोलॉजिकल थ्योरीज आ गई हैं. मॉडर्न बायोलॉजिकल थ्योरीज में एक उन्होंने हार्मोन्स की बात की है कि देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. सो दिस हार्मोन is linked with aggression. So research has shown a relationship between high blood testosterone levels and increased male aggression, and low brain levels of serotonin. I don't know what is this. You can skip it. These two are important. कि टेस्टोस्टेरोन की अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो scientifically, so we are talking about scientific theory. So if we have more testosterone in a person, so there is more likelihood of aggression. More likelihood of aggression leads to criminal behavior. अब ये जेनेटिक्स एंड क्राइम की मॉडर्न बायोलॉजिकल थ्योरी है. ये सर आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई है. अब आ रही है सही? जी जी अब ठीक हो गई. थोड़ा माइक पास कर ले. जी जी अब ठीक है. Okay, so then there is modern biological theory जिसके अंदर genetics और crime की बात की गई है. So we have different kind of hormones. So this XYY. So if a person has this hormone XYY, so he become a super male. Humans have 32 pairs of chromosomes. The last pair determines gender. So male का होता है XY और female का XX. A study of Scottish prisoners found that a small number of had another chromosome that is called XYY. So this is linked as this chromosome was found in prisoner, so it is linked with the criminality. So these were identified as potentially violent and labeled as super male. ठीक हो गया. So ये कुछ biological theories थी. 3 हमने main theories discuss की हैं. इसके अंदर एक genetics और crime की थी जो लेम्ब्रूसो की थी. उसके बाद आपके पास कौन सी है जिसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टाइप आ जाती है, जो आती है शेल्डम की. और उसके बाद आती है इंटरेक्शनिस्ट व्यू जो आता है विल्सन का. मेन इसके अंदर थ्योरी लेम्ब्रोसो की है जिसमें एटाविस्टिक पर्सन आता है, और एटाविस्टिक पर्सन की आपने कुछ क्वालिटीज बतानी है, और उसके अंदर कोई केस स्टडी बता सकते हैं कि ढूंढ लें जिसके अंदर इस तरह की एटाविस्टिक पर्सनैलिटी हो, फिजिकल डिसऑर्डर हो, और वो आपकी इस थ्योरी को जस्टिफाई कर सकती है इन द केस ऑफ पाकिस्तान. ठीक हो गया. इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो इन बायोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर? No, sir. Okay, now we are going to psychological positivism. So psychological positivism के अंदर जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है, that is really interesting theory. और उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट आता है. और जाने से पहले आप में से किसी की है बैकग्राउंड इसका साइकोलॉजी का? No, sir. नहीं सर. अच्छा नहीं है, चलें हम इसको देखते हैं.
Okay, what is psychological positivism? So there are different psychological theories. There are many theories regarding psychological causes of crime. One is called intelligence and crime, and the other one is psychoanalytic theories. So we will discuss the psychoanalytic theory. So psychoanalytic theory like ये क्या करता है, ये आपके psychology को analyze करके बताता है कि what will be the chances of a criminal behavior. So this theory is associated with the work of Sigmund Freud, who believed that people who had unresolved deep-seated problems were psychopaths. Psychopaths, who are psychopaths? Psychopaths are the person characterized by no sense of guilt, no subjective conscience, and no sense of right and wrong. So what they do what they think is good for them because they don't have any conscience. Conscience क्या कहती है? वो आपको बताती है, it helps you in differentiating between what is right and what is wrong. So they have difficulty in forming relationships with other people, and they cannot empathize with other people, and they are also called sociopath or antisocial personalities. So ये है थी sociopath, psychopath क्या होते हैं. अब सिगमंड फ्रॉड क्या कहता है? सिगमंड फ्रॉड जिस तरह लेम्ब्रूसो इंपॉर्टेंट था, इस तरह सिगमंड फ्रॉड भी इंपॉर्टेंट है. अब सिगमंड फ्रॉड की बुक का नाम क्या था? एक मिनट मैं बता दूं, इसको मैंने नहीं लिखा. तो उसकी बुक थी जी सिगमंड फ्रॉड्स क्राइम अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी. इसकी बुक है जी. नो, क्राइम थ्रिलर्स. इसकी बुक है मिस्ट्री थ्रिलर एंड सस्पेंस. Let me check my notes. I think I have written it over. Sigmund Freud. No, I have not written the name of book. So इस तरह की उसमें इस तरह की फिर नहीं होगी कोई specific जिस तरह दूसरों की थी. अच्छा, so what does Sigmund Freud say? So one can understand human behavior best by examining early childhood experience. उसमें क्या होता है? He tend to approach the challenge of understanding and explaining criminality by focusing on theories of personality or learning that account for individual behavior. जो individual जो जिस तरह जो उसकी grooming हो रही होती है, तो जो उसने learn किया होता है और maybe there are some defects in the learning or in the upbringing, so उसने उसको study किया था और उसके बाद उसने psychoanalytic की theory दी है. And then he proposed that human nature is inherently antisocial. So what is antisocial? Antisocial क्या होती है कि जो socialable ना हो, like जो अगर आप उसमें ह्यूमन नेचर की बात करें, जो अर्ली ह्यूमंस थे, सो दे जस्ट जो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था वो क्या होता था? टू सेटिस्फाई देयर डिजायर्स, देयर नीड्स, एंड दे डोंट follow or they don't care for the other needs or other desires. सिर्फ उनको अपनी पता होती थी. So it that is why Sigmund Freud termed human nature as inherently antisocial, and then he presented three main things in a psychology that is like जो जो उनका इंटरप्ले है, like id, ego और सुपर ईगो आपस में इंटरप्ले करते हैं कि इसका जो रिजल्ट होता है that determines the criminal behavior. So सबसे पहले we need to understand what is the concept of id, सुपर ईगो और ईगो. उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं id. So these are the three personality components. Id mean it is a player seeking part. If not constrained by reality, it seeks immediate gratification, satisfaction of own needs. अभी आपने प्लेयर और पियानो प्लेयर जो थी वो इसमें हमने क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में देखा था कि जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था उसके पोस्टुलेट क्या थे कि इफ द प्लेयर ऑफ अ क्राइम of committing a crime is more than the pain inflicted on it, so the person may commit a crime. So उसमें क्या होता था? प्लस माइनस एनालिसिस होता था एक पर्सन का और उसकी वजह से वो क्राइम कमिट करता था और नहीं करता था. बट देन the Sigmund Freud termed it as a player seeking part of a human behavior. So it is not constrained. If it is not constrained,
the person may seek immediate gratification, satisfaction of his own needs. ईगो क्या होती है? इट इज द रियलिटी, इट टेल्स यू व्हाट इज रियलिस्टिक. इसके एग्जांपल बड़ी मजे की आगे पेश की है, आई विल गिव यू, बट फर्स्ट आई विल आस्क एन एग्जांपल फ्रॉम यू आफ्टर आई एक्सप्लेन दिस थिंग. Ego, what is ego? It is the satisfying the its desire in ways that will realistically bring pleasure rather than pain. ठीक है, practically. So ये क्या होती है? ईगो होती है रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी, कि क्या चीज पॉसिबल है, क्या चीज पॉसिबल नहीं है. उसके बाद आती है आपकी सुपर ईगो. सुपर ईगो होती है मोरालिटी, कि ये होना चाहिए, like represent internalized ideals and provides standards for judgment and for future aspiration. It is called conscience as well. सो इन बेस पे आप लोग मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो की किसी भी केस, किसी भी चीज के बारे में? पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. अब ये एग्जांपल है, ठीक है. एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, शुड यू स्टडी और नॉट. अब आपके अगर इड ज्यादा है तो इड कहेगी कि रिवीजन ना करो, सोशलाइज हो, जो खाओ पियो घूमो फिरो जो मर्जी करो, ठीक है. सो इट मींस दैट योर इड इज ग्रेटर देन योर सुपर ईगो. तो ईगो क्या करती है? रियलिस्टिक नहीं है. तो किसकी तरफ टिल्ट हुआ हुआ है आपका बिहेवियर? इड की तरफ टिल्ट हुआ हुआ है. अच्छा, अगर आपकी सुपर ईगो ज्यादा हो जाती है, वो कहती है कि डू नथिंग बट रिवीजन, हैविंग नो रेस्ट और रिलैक्सेशन. ठीक है, कि कुछ ना करो, बस हर वक्त पढ़ते रहो, बिकॉज योर एग्जाम्स आर कमिंग, आर अप्रोचिंग. तो ये क्या बताती है? ये आपको सुपरफिशियल एक चीज बताती है, आइडियलिस्टिक व्यू बताती है सुपर ईगो, ठीक है, कि ये चीज होनी चाहिए. एक्सट्रीम एंड है, इड एक एक्सट्रीम एंड है और सुपर ईगो एक एक्सट्रीम एंड है दूसरा. ईगो क्या है? ईगो कहता है कि रिवाइज विद द रियलिस्टिक रिवीजन टाइम टेबल, दैट इज व्हाट योर ईगो इज. ठीक है. तो इसके अलावा कोई मुझे एग्जांपल बताएं इड, ईगो और सुपर ईगो के. कोई कोई बताना चाहे? कोई एग्जांपल नहीं है इसके? नहीं सर, फिलहाल नहीं आ रही. हाँ जी. फिलहाल मैंने कहा माइंड में नहीं आ रही, थोड़ा पढ़ेंगे ना बाद में फिर आ जाएंगे. बाद में क्या पढ़ना है, सोचे ना कुछ. इड, ईगो, सुपर ईगो की बता दी है. देखिए, अब आप कहते हैं कि एक चीज आपको मिलती है, सो इट सेज दैट इट्स ऑल योर्स, फॉरगेट अबाउट योर ब्रदर, कीप इट ऑल योरसेल्फ. ठीक है. ईगो कहती है, इस पे सुपर ईगो क्या कहती है? यू नो दैट योर ब्रदर लव्स यू, ठीक है, सो यू शुड गिव इट ऑल टू योर ब्रदर. बट ईगो क्या कहती है? कि इट इज अ रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू. ये कहती है कि रिटेन समथिंग फॉर योरसेल्फ एंड गिव समथिंग टू योर ब्रदर. ठीक है, बैलेंस करें आप इसमें. सो ईगो, ईगो इज गुड. सो जिसकी ईगो जो है वो जिसकी सुपर ईगो ओवर पावर, जिसकी इड ईगो पावर काट दे उसकी सुपर ईगो पे, तो वो क्या करता है? वो क्रिमिनल सेटअप की तरफ चले जाता है, क्रिमिनल माइंड की तरफ चले जाता है, क्रिमिनल बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है. फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन इज गोइंग टू कमिट अ क्राइम, सो वो सोचेगा कि उसकी जो इड होगी उस वक्त वो कहेगी कि you will get a lot of satisfaction. For example, you're going to commit a theft. ठीक है. So for example, if you're going to you're going to steal a car, so you will have a player to drive a car, you can go anywhere, you can show off to your friends or everything like that. So that is your id, that is the person's id. अब super ego क्या कहेगी? No, no, you should not do that. Okay, so what you need to do, you need to stand there and you need to protect the car so that no one can steal it. तो ये उसकी सुपर ईगो कहेगी. What does the ego say? Ego say that you should not commit a suicide, or you should not you should not commit the you should not steal the car, and you should not stay at the time at the place. You should move away, because this is none of your concern. This is the realistic point of view. Or if you commit the theft, so what will happen? Punishment will be inflicted upon you. So this is called ego. ठीक है. तो इस बेस के ऊपर कोई भी आप एग्जांपल, कोई भी केस को उसको एलेबोरेट कर सकते हैं. इड, ईगो और सुपर ईगो, ये होती है साइको एनालिटिक थ्योरी. अब इसकी समझ आइए आप लोगों को, व्हाट इज इड, ईगो और सुपर ईगो? यस सर. यस सर. जी सर. अच्छा, अब इड क्या कहता है? कि इट इज कंपोज्ड ऑफ, जी बताइएगा दोबारा, क्या कहा आपने? अभी किसी ने कुछ कहा है इधर?
No question? Okay. So what is id? Id composed of biological instinctual drives. So it is innate, born with it. It seeks immediate, indiscriminate gratification. मतलब आप इसका comparison दे सकते हैं. What is it? What is ego? And what is superego? So ये सारा कुछ मैंने आपको explain कर दिया. Now we go up. So psychoanalytic theory. So the foundation of theory is that individual progress through overlapping stages of development. Personality is made up of three forces: the id, that is the biological drives, that is your natural instinct, ठीक है, ego which controls and directs the id, and super ego, that is conscience. तो conscience क्या कहती है? जो आपकी morality है, और ego क्या करती है? बैलेंस करती है between your id and superego. Id and ego and superego are created when the individual successfully works through conflicts present at each stage of development. ठीक है, id जो है वो inborn होती है. Criminal behavior results when the internal controls found in the ego and superego fail to restrain the primitive, aggressive urges of the id. Understand? यानी जब आपकी ईगो और सुपर ईगो आपकी कॉन्शियंस होती है. अब कॉन्शियंस इतनी ज्यादा भी ना हो और इतनी कम भी ना हो. अगर कॉन्शियंस डेवलप नहीं हुई तो ईगो किसको बेस बनाकर जो है वो बैलेंस करेगी. ठीक है, मतलब यू नीड टू वेट समथिंग. एक साइड पे आपके पास प्लस है, एक साइड पे माइनस है. इनमेट्स जो क्वालिटीज हैं वो इड है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड के. नेचुरली दे आर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जिसकी वजह से यू सीक और द पर्सन सीक्स प्लेयर. ठीक है, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज बट ही सीक्स प्लेयर. बट द सुपर ईगो एंड ईगो, इट इज लर्न और इट इज ग्रूम्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम और थ्रू एनी कॉन्फ्लिक्ट. तो उससे क्या होगा? उससे आप लोग लर्न करेंगे कि व्हाट इज द आउटपुट और हाउ वी विल डील विद इट. सो अगर आपकी ईगो और सुपर ईगो डेवलप नहीं हुई, सो योर इड विल ओवर पावर इट, एंड दैट इज द crux or the thesis of psychoanalytic theory. If the ego and superego do not fully develop through the early stages of development, criminal behavior is likely to develop. So this is what Sigmund Freud states. So ये three हो गई हैं. इसके बाद now we go to the hidden elements of personality. So this is conscience level, pre-conscious level. अब ये इसी तरह की मैंने एग्जांपल दी हुई है, लेकिन आपको आई थिंक ईगो सुपर ईगो समझ आ गया है. सो अब ये एक एग्जांपल उसकी कोट है सिगमंड फ्रॉइड की. इन मैनी क्रिमिनल्स स्पेशली यूथफुल वंस इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट अ वेरी पावरफुल सेंस ऑफ गिल्ट व्हिच एग्जिस्टेड बिफोर द क्राइम एंड इज देयरफॉर नॉट इट्स रिजल्ट बट इट्स मोटिव. क्या हो रहा है? वो इंस्टिंक्ट की बात कर रहा है, और वो इंस्टिंक्ट क्या है? इट इज एज इफ इट इज वाज अ रिलीफ टू बी एबल टू fasten this unconscious sense of guilt onto something real and immediate. So ये कोटेशन जो है वो कोटेशन इसी तरह की होती हैं. तो ये डिफिकल्ट जो मैंने आपको इसका सिंपलीफाई करके आपको बता दिया तो व्हाट इज इड, ईगो और सुपर ईगो, एंड व्हाट इज द crux of Sigmund Freud theory of psychoanalytic. अब उसके बाद साइकोएनालिटिक इंटरप्रिटेशंस हैं. देयर आर थ्री मेन प्रिंसिपल्स ऑफ साइको डायनामिक थ्योरी व्हेन अप्लाइड टू डेलिक्वेंट. अब डेलिक्वेंट्स क्या होते हैं? जो जी सर ये साइको एनालिटिक थ्योरी को अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन दोबारा कर देंगे तो बड़ा वो हो जाएगा सर, क्योंकि साइको एनालिटिक थ्योरी क्या होती है? साइको एनालिटिक थ्योरी होती है कि उसमें ना आपने स्टडी करना होता है किसी पर्सन की थ्री इंस्टिंक्ट स्टडी करनी है: इड, ईगो और सुपर ईगो. ठीक है, अब साइको एनालिटिक में करते क्या है? एनालिसिस करते हैं किसी की साइकोलॉजी का, और साइकोलॉजी में होते हैं थ्री कंपोनेंट्स: इड, ईगो और सुपर ईगो. अब आपने देखना होता है कि क्या उसका इड ओवर पावर कर रहा है उसके सुपर ईगो पे, क्या उसका एक ईगो जो है वो बैलेंस मेंटेन कर रहा है बिटवीन इड और सुपर ईगो, और इट्स सुपर ईगो इज ओवर पावरिंग इट्स इड. तो ये चीजें हमने स्टडी करनी होती हैं. जो इस साइको एनालिटिक थ्योरी से क्रिमिनोलॉजी का कंसर्न वो ये है कि जब आपका इड और सुपर ईगो ग्रूम नहीं करता, इतना डेवलप नहीं होता, तो क्या होता है कि जो इड है वो तो नेचुरल है, वो तो इनबॉर्न है, वो फिर ओवर पावर करता है आपके ईगो को और सुपर ईगो को, जिसकी वजह से क्रिमिनल बिहेवियर होता है. तो ये इसका जो है वो समरी है इस पूरी थ्योरी की. समझ आ गई है? सर सुपर ईगो क्या होगा? मतलब मोरालिटी की तरफ जाएंगे आपकी मिसाल के तौर पर अगर आइडियलिस्टिक ये
होते हैं नोशंस, आइडियलिस्टिक। ओके, मतलब मिसाल के तौर पर सर कोई शख्स बैंक रॉबरी करने के लिए जा रहा है, तो उसकी हाँ सुपर ईगो जो होगी तो वो ये बोलेगा कि मुझे ये चीज नहीं करनी क्योंकि ये गलत है मोरालिटी के हाँ बिल्कुल, ये टेक्स्ट। बहुत गलत है मोरालिटी के, यू शुड नॉट गो, और इफ यू फाइंड समवन यू शुड रिपोर्ट। वो आइडियलिस्टिक व्यू बताता है ना, जो पॉजिटिविस्टिक व्यू है सोसाइटी का, वो होता है सुपर ईगो, और ये डेवलप होती है सर अगर आपका। जी जी बताएं। सर ईगो के अंदर क्या होगा, मतलब ईगो के कॉन्टेक्स्ट में देखे तो वो क्या ईगो क्या सोचेगा? करेगा, ईगो उसको बैलेंस करेगा, इड को और सुपर ईगो को। ईगो कहेगा रियलिस्टिक व्यू करेगा, कहेगा कि अगर आपने इसमें रोबरी की तो आपको जो है वो सजा बड़ी ज्यादा होगी, तो ये ना करो, ठीक है। तो ये होगा ईगो। ऑब्जेक्टिव व्यू देगा वो रियलिस्टिक व्यू देगा। ओके 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 ओके। और इड क्या करेगा, इड की वजह से तो वो रोबरी करने जा रहा है। जी जी सर। सर ये ठीक है, ऐसा तो ही है कि एक अच्छा काम और एक बुरे काम की तरफ हाँ, आप उसी इसको इसी सेंस तरह में ही कंसीडर लेंगे कर सकते हैं। इसको हाँ जी, आप इसको इसी कि इसी साइड में भी ले सकते हैं कि आपका जो इड है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। इड को कुछ नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको सिर्फ ये पता है कि आपको क्या पसंद है, आपकी ग्रेटिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी जो है वो डिजायर्स फुलफिल होनी चाहिए। ये इसका नाम है इड, ठीक है। आप यू डोंट नीड टू डील विद कॉन्शियंस, यू डोंट नीड टू डील विद व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, यू जस्ट नीड टू सेटिस्फाई योर ओन डिजायर्स, दिस इज कॉल्ड इड। बट सुपर ईगो ये नेचुरली नहीं होता, सुपर ईगो किसी के अंदर नेचुरली सिर्फ होता है इड। सुपर ईगो आप लर्न करते हैं विद योर एक्सपीरियंसेस थ्रू डिफरेंट सिचुएशंस। अब अगर किसी की सुपर ईगो डेवलप नहीं हुई हुई तो ईगो बैलेंस नहीं कर सकती इड और सुपर ईगो में, तो एज अ रिजल्ट इड ओवर पावर कर लेता है। लेकिन अगर किसी की सुपर ईगो डेवलप है तो क्या करेगा, ईगो बैलेंस रखेगा बिटवीन इड और सुपर ईगो। ओके सर ओके। और सर अगर सुपर ईगो डेवलप नहीं हो तो फिर वो साइको क्राइम करेगा, इन साइको होके पर्सन फिर वो क्राइम कमिट करता है। नहीं, साइकोपाथ बन जाएगा ना वो, जिसकी ईड ज्यादा हो गई ना वो साइकोपाथ बन जाएगा। यस सर। और सर डेवलप मतलब किस तरह किस दूसरों को देख के या किस तरह सोशल एक्सपीरियंस लेके डेवलप होती है सुपर सोशल ईगो? एक्सपीरियंस से डेवलप होती है, आपके एनवायरनमेंट से डेवलप होती है, आपका जो गेटअप है, ग्रूमिंग अप है, उससे डेवलप होता है। यही लिखा हुआ था यहाँ पे कि सोशल सेटअप किस तरह ईगो और सुपर ईगो डेवलप होता है। सो ये लिखा हुआ है कि आर क्रिएटेड व्हेन द इंडिविजुअल सक्सेसफुली वर्क्स थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स प्रेजेंट एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब उसको बताया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है, जी सर। क्योंकि आप उसको इड कुछ नहीं दिखा सकते। इड का मतलब होता है कि वो नेचुरली उसके लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो एक बच्चा है उसको अगर वो सड़क क्रॉस कर रहा है लेट से, ठीक है, तो वो ये नहीं देखेगा कि कोई कार आ रही है साइड से नहीं आ रही, वो अगर उसको एक चीज अच्छी लग रही है तो उसकी तरफ लाजमी जाएगा, ठीक है। अब आप उसको बताएंगे कि यू हैव टू वेट, यू हैव टू लुक अराउंड यू एंड देन यू हैव टू गो, सो दिस इज व्हाट यू आर डेवलपिंग। You are explaining him that he is learning successfully through different conflicts present at each stage of development, ठीक है। यस सर। सो ये इंटरनली आप कंट्रोल कर रहे हैं, ये आप हर वक्त उसके साथ तो नहीं रह सकते, बच्चे के साथ बताएंगे अच्छा बुरा है, लेकिन आप उसको डेवलप कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। नाउ इन द फ्यूचर व्हेन ही हैज द अपॉर्चुनिटी, फॉर एग्जांपल, कि वो कोई चीज चोरी कर सकता है, तो वो सोचेगा, उसकी जो कॉन्शियंस है, जो उसकी मॉरल अपब्रिंगिंग है, जो जिसको आप सुपर ईगो कहेंगे, सुपर ईगो कहेगा नहीं ये नहीं करना, दैट इज रियली रॉन्ग। और ईगो क्या कहेगा, ईगो क्या कहता है, रियलिस्टिक व्यू है, वो बताएगा कि अगर आपने चोरी की तो ईगो भी तो लर्न किया जाता है ना, कई सोसाइटीज में ईगो कुछ और होगा एक एक पर्सन के लिए, और एक पर्सन के लिए उसी एनवायरनमेंट में, मतलब उसी कंडीशन में ईगो कुछ और होगा। अब एक पर्सन का ईगो कह रहा होगा कि दिस लाइक यू विल बी पेनलाइज्ड, और एक कह रहा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कि आपको जो है वो बुराइयां ज्यादा मिलेंगी और इस तरह की चीज होगा। सो ये आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। So there are different stages of personality development and it is different for different persons, ठीक है। अब इसमें समझ आ गई है कि मेन चीज क्या है।
जी साइकोलॉजिकल थ्योरी। सर। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी है बिकॉज ऑफ इट ईगो और सुपर ईगो। लेकिन इसका जो है वो साइको एनालिटिक इंटरप्रिटेशन में देखते हैं। सो देयर आर थ्री मेन प्रिंसिपल ऑफ साइको डायनामिक थ्योरी व्हेन अप्लाइड टू डेलिक्वेंट्स। Criminal behavior are that delinquent behaviors that can be traced to faulty relationships in the family during the first years of life. These faulty relations inadequate ego result in inadequate ego and super ego development. वही बताया मैंने आपको कि डेवलपमेंट उसकी अच्छी नहीं होती। इसकी वजह से क्या होती है, वी हैव फॉल्टी डेवलपमेंट ऑफ ईगो एंड सुपर ईगो एंड दीज इनएडिक्वेसीज इन टर्न मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द चाइल्ड टू कंट्रोल लेटर डेलिंक्वेंट इम्पल्सेस। ठीक है, मतलब शुरू में जो है उसको नहीं सिखाया जाता कि ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है, मतलब उसको कॉन्शियस नहीं दिखाया जा रहा। इन सिंपल वर्ड्स, प्लेन वर्ड्स, उसका मतलब है उसको अच्छे बुरे का नहीं बताया जा रहा। सो उसका मतलब है कि इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर द चाइल्ड to control the impulses of id in the later stages of life। ठीक है, ये है आपका साइको एनालिटिक थ्योरी। अब इसमें आप जा सकते हैं साइकोलॉजी को, उसको स्टडी करना है तो उसको पूरा पर्सन प्रोफाइल स्टडी करेंगे कि उसका जो है वो फैमिली लाइफ कैसी थी, क्या उसको जो है वो उसको उसका ब्रोटअप सही था, उसको चीजें मिल रही थी, उसको नहीं मिल रही थी, तो सारा कुछ आ जाता है इसके अंदर। Criminal behavior was more likely to occur in individuals who had not successfully completed all stages of moral development। ठीक है, अब इसमें केस स्टडी देखते हैं। अब ये मैंने कॉपी की थी किसी बुक से कि रिचर्ड वाज 6 when he committed his first delinquent act। He stole a comic book from the corner drugstore। Okay, 3 months before the incident, his father, an alcoholic, had been killed in an automobile accident. After that, his mother became unable to care for the family and had abandoned the child. For the next 10 years, the state welfare agency moved Richard in and out of foster homes. So during this time, he actively pursued a life of crime, breaking into houses during day and night and stealing cars in the night. So by age 20, while serving a 10-year prison sentence for armed robbery, he had voluntarily entered psychoanalysis. And after 2 years, Richard's analytics suggested three reasons for his criminality. Being caught and punished for stealing made him feel less guilty about hating his father and mother for abandoning him। ठीक है, stealing did not violate his moral or ethical principle। Second, or stealing resulted in immediate gratification pleasure, both which Richard had great difficulty resisting। So इसका मतलब ये है कि उसको ये तीन उसने जो कंक्लूजन बताए हैं, इसका मतलब है कि उसका जो उसकी जो साइकोलॉजी है वो डेवलप नहीं हुई। वाई वी सी द रीजंस दैट देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज फॉर हिज ईगो और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, so Richard's psychoanalyst suggested that Richard's anger over his father's death and his mother's abandonment created unconscious feeling of guilt, which he sought to relieve by committing a crime and being punished for it। ठीक है, या ये हो सकता है उसके अंदर, या psychoanalyst also offered an alternate explanation for Richard's persistent criminal activities। His conscience was perhaps not too strong but too weak। मतलब उसकी कॉन्शियंस क्या है, या उसकी कॉन्शियंस जो कॉन्शियंस डेवलप हुई है जिसको सुपर ईगो कह सकते हैं, वो एक नेगेटिव सेंस में डेवलप हुई थी कि वो चाहता था कि अपने जो फादर की डेथ और मदर के अबैंडनमेंट को वो इस तरह उसको सेटिस्फाई कर सके कि वो चोरी करे और फिर उसको पनिशमेंट दी जाए, और वो समझता था कि उसको जो है वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है। या दूसरी साइड पे आप उसको ये कह सकते हैं कि उसकी सुपर ईगो इन अ पॉजिटिव सेंस डेवलप नहीं हुई, इस वजह से क्या करता है वो ये चीजें कमिट करता है। So the conscience or superego was so weak or defective that ego, which acts as a moderator between superego and id, was unable to control the impulses of the id, that is the part of the personality that contains powerful urges and drives for gratification and stratification, because the superego is essentially an internalized personal image developed when the child assumes the parent's attitude and moral values। अंडरस्टैंड, किसमें यही बताया गया है कि जो सुपर ईगो है वो उसकी डेवलप नहीं हुई। वाई, बिकॉज ही हैड नॉट द पेरेंटिंग, द फैमिली रिलेशनशिप, जिसकी वजह से he was unable to differentiate between what is right and what is wrong। his id super overpowers his undeveloped super ego। ठीक हो गया, तो ये आपकी जो है वो साइको एनालिटिक थ्योरी थी और ये उसकी केस स्टडी आपने बता दिया। इस तरह की केस स्टडीज होती हैं जी, इस तरह हमने पाकिस्तान की भी देखनी है कि क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या हो सकता है और उसकी हिस्ट्री क्या हो सकती है।
इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है? नो सर। चलें आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट limitation. So it is thorough explanation. It is very difficult to सर test हम जो or validate. जी बोलें। सर हम जो केस स्टडी ढूंढेंगे हम वो थ्योरी के साथ लिंक करेंगे उनको, इनकी जो जो हाँ उसमें जी, रीजन होगी यही उससे यही लिंक करना है। करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने उसको लिंक करना है। आपको पता होगा ना कोई केस का, तो आप उसको इजीली रिलेट कर देंगे। मतलब आपको किसी भी, जैसे ये एग्जांपल किसी ने दी थी ये नूर मोहम्मद केस की, तो अगर आपको उसकी साइकोलॉजी का पता है, ठीक है, आपको उसका प्रोफाइल का पता है, तो आप उसको इजीली लिंक कर सकते हैं किसी भी थ्योरी के साथ। जिस तरह हम आईआर में करते हैं ना, अगर किसी की आईआर है तो आईआर में क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि अगर किसी पावर पॉलिटिक्स देख रहे हैं या कोल्ड वॉर को स्टडी कर रहे हैं या वर्ल्ड वॉर 1 को स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें ये रियलिस्टिक थ्योरी और जो उसकी जो लिबरल थ्योरी है वो स्टडी करते हैं। वो क्या करते हैं, वो हम एग्जाम्पल से लिंक करते हैं। तो इसी तरह क्रिमिनोलॉजी में हमने करनी है। आपके पास कुछ केस स्टडीज होंगी। अब एक क्रिमिनोलॉजी है तो आपके पास क्रिमिनल केसेस होने चाहिए। कुछ इस तरह के केसेस होंगे जिसको आप इजीली किसी भी थ्योरी के साथ लिंक कर सकते हैं, या हर थ्योरी के आपके पास कुछ स्पेशल केस स्टडीज होंगे जो आप इजीली उनको लिंक कर सकते हैं। तो अगर आपने ये यूज करेंगे केस स्टडीज, तो आपको इजीली अच्छे नंबर आ जाएंगे इस क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट में। अदरवाइज अगर आप इसको नहीं यूज करेंगे तो नंबर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर है क्या, you have theories, you have concepts, and then you need to use them, you need to apply them. और ये इतना इजी है, मतलब इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड केस स्टडीज। आपके जो कोलीग हैं आप उनके साथ जो मतलब मिलें, आपस में टास्क असाइन करें और इजीली उसको परस्यू करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक जी कुछ ना सर। कुछ ढूंढ के लाएं, या जिसको आइडिया है इन केसेस का सर उसको कहें, उससे ले लें। जी बताएं। सर गूगल में से नहीं मिल रही, बड़ी सर्च की है सर। हाँ, तो गूगल से तो नहीं यहाँ तो मिलेंगी। वो वो आपका एक था एक स्टूडेंट जिसकी थी वो, जिसने क्रिमिनोलॉजी में आई थिंक एमएस की हुई है, पता नहीं क्या नाम था उसका। ही वो सेइंग कि आप जो है वो एक लाइब्रेरी जाएं जो उसमें सर है साइम कहाँ पे, साइम। साइम है। हाँ, साइम 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 से पूछ लें। साइम आपको बता देगा कि कैसे इसको एक्सेस करना है। या साइम को कहें कि वो ला दे आप लोगों को। तो यहाँ आप जी लाइब्रेरी सर। चले जाएं, नेट से आपको कुछ नहीं मिलेगा इसका, आपको ये खुद ही देखना पड़ेगा। और टाइम भाई ये बता दो कैसे मिलेगी। क्या कह रहे हैं? साइम मीटिंग में इससे एक बार पूछ लेंगे कैसे मिलेगी, फिर हम जरा ढूंढे। जी किधर है जी साइम? मीटिंग नहीं है। साइम आर यू हियर? नहीं है, नहीं नहीं मीटिंग में नहीं है। अच्छा ये नहीं, कोई साइम और है। बता रहा था कि आवाज आ रही है सर? जी 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 आ आ रही रही है। है। हाँ सर आप जो है ना ये पंजाब बार काउंसिल का जो हमारा ऑफिस है, या आप चले जाएं इधर ऐवान अदल, लाइब्रेरी में जाके किसी भी केस को लेके किसी भी ईयर में जो जो भी प्रोमिनेंट केसेस हैं उनका बस आपने जाके उन्हें कहना, वो आपको कॉपी करके दे देंगे पूरा जो आपका केस है ना उसमें। लेकिन ये सर इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इसमें सिर्फ ऑर्डर्स होते हैं और डायरेक्शंस होती है जो कोर्ट की तरफ से होती है, या जो प्लीडिंग सारी हुई भी होती है केस पे। इन्वेस्टिगेशन कहाँ से मिलेंगे आपको? सर वो थाने से मिलेंगे। थाने से जाके लें फिर लोग जाके, या दो दो केस स्टडी हर कोई ले आए तो 10 आपके इजीली बन जाएंगे। थाने ये वाले जो कहाँ मेन सुनते मेन हैं। हमारे जिस हाँ तरह हमारा जो हमारे मेन मेन केसेस हैं सर, हाँ, जिस मेन तरह मेन अभी केसेस ये आपको जैनब मिल मर्डर जाएंगे। चल रहा था जी, और नहीं जैनब, कंदील ये बलोच तो का मेन केसेस हैं, इनके तो आपको तो ऑलरेडी नेट से मिल जाएंगे ना, इनके तो मसले नहीं है। बस इसके तो सर आर्टिकल्स ही भरे आ 5-10 जाते केस हैं। बन जाते हैं हाँ, जी। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे केस आप एक दफा लाजमी विजिट करें, मतलब ये इनका, और उनको जाके बताएं कि यू आर अ स्टूडेंट और आपको रिसर्च पर्पस के लिए चाहिए, सो दे विल फैसिलिटेट यू। उसमें आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाएगा, एंड देन यू कैन इजीली मेमोराइज द थिंग्स। जी सर ये तो जी इस तरह ठीक ही है है। सर। ओके। Okay. अच्छा, next we go to the social positivist theories in sociological theories. So sociological theories क्या हैं, ये उनसे differ करती हैं in a way कि they emphasize human being living in social groups and वो आपका that फायदा the उठाएंगे। social structure. Hello, what are you saying? There is a background noise coming in. जिसका कोई टाइम म्यूट क्वेश्चन कर। है, जिस
जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है सो ही मैं म्यूट ताकि डिस्टर्बेंस ना हो. So what are the sociological theories? So sociological theories actually emphasize कि ये जो human beings हैं, ये जो उनकी society है, ठीक है, that plays an active role in determining their behavior. कि either they pursue their criminal behavior or not. Most sociological theories of crime causation assume that a criminal behavior is determined by his or her social environment and reject the notion of born criminal. Born criminal किसने कहा था? लेम्ब्रूसो ने. ठीक है. सो दे गो अगेंस्ट द नोशन ऑफ बॉर्न क्रिमिनल. सो इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाती है सोशल लर्निंग थ्योरी जो एल्बर्ट बंदूरा ने दी थी. सोशल लर्निंग थ्योरी व्हाट आई हैव रिटन इन माय नोट्स. अच्छा, इसमें वही इसमें सारा कुछ आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ है. सो इन सोशल लर्निंग थ्योरी ये एल्बर्ट बंदूरा ने दी थी, ये रीसेंट थ्योरी है आपकी. So what does social learning theory suggest? It suggests that aggressive behavior is learned from three sources and it is not innate. Innate क्या कहता था? वो biological theories कहती थी, या आपके जो psychological theories हैं जिसमें वो id की बात करते थे कि id क्या कहते थे कि वो आपके कुछ इस तरह players हैं. अब ये social जो theories हैं वो उन पे question करती हैं कि these players like how a person learns these things. अगर किसी के interaction ही नहीं है इसी चीज में कि वो उसको player समझते नहीं है. लाइक पोस्ट मॉडर्निस्ट, अगर मैं कोई एक और एग्जांपल दूं, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज अ प्लेयर. फॉर मी प्लेयर इज डिफरेंट, फॉर अ पर्सन प्लेयर इज डिफरेंट. सो हाउ वी कैन जस्ट समराइज ऑल द प्लेयर एज अ वन प्लेयर. ठीक है. हर पर्सन के लिए प्लेयर डिफर्स फॉर पर्सन टू पर्सन. ये उसने लर्न करना होता है. दैट इज द मेन थीम ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी. लाइक दे लर्न व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज बैड फॉर देम एंड दे लर्न फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट. When they are born, they know nothing. They are just a kind of blank piece, and then the society writes on it. So उसको पता लगता है कि what is good or what is bad because he is living in a certain society. उस सोसाइटी की वजह से उसको डिटरमिन होती है कि व्हाट इज द प्लेयर सीकिंग थिंग्स एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नॉट प्लेयर सीकिंग थिंग्स. सो अब एक सोसाइटी में फॉर एग्जांपल इफ आउटिंग इज प्लेयर, सो आउटिंग बाहर जाना दैट इज अ प्लेयर. बट इन वन सोसाइटी इफ क्राइम इज अ प्लेयर देन क्राइम इज अ प्लेयर फॉर दैट पर्सन एज वेल. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय सोशल लर्निंग थ्योरी. अब इस सोशल लर्निंग थ्योरी के वी हैव थ्री सोर्सेज एंड इट इज नॉट इनमेट. What are the three sources? One is the immediate source, that is your family. The second is the social models or the peers, and then the symbolic modeling. For example, we talk about the media and anything like that. So social learning theory, it states that the aggression is learned and it requires that a person's observation of aggression or rewards for aggression involves behavior modeling of family members, community members and mass media. वही जो तीन चीजें आपको बताई हैं. अब प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग क्या है? इसके थ्री प्रिंसिपल्स हैं. एक पॉजिटिव लर्निंग होती है, एक नेगेटिव होती है, एक पनिशमेंट होती है. पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जिसको कहते हैं पॉजिटिव स्टिमुलाई, नेगेटिव रेनफोर्समेंट को कहते हैं नेगेटिव स्टिमुलाई, एंड देन देयर इज पनिशमेंट. पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होती है कि इट इंक्रीजेस द टारगेट बिहेवियर बाय रिवॉर्डिंग द इंडिविजुअल. नेगेटिव रेनफोर्समेंट इंक्रीजेस द टारगेट बिहेवियर बाय रिमूविंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस or it reduces the odds of the target behavior being repeated. अब इसमें क्या हो रहा है? प्रिंसिपल लर्निंग इसमें समझ नहीं आई होगी आप लोगों को. अब इंक्रीजिंग द टारगेट बिहेवियर. टारगेट बिहेवियर क्या है? कोई भी किसी किस्म का बिहेवियर बात कर रहे हैं ना, क्रिमिनल बिहेवियर हो गए हैं, कोई भी बिहेवियर है, हम सिर्फ लर्निंग की बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर एक बिहेवियर लर्न हो रहा है तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं उसकी लर्निंग अगर आप उस इंडिविजुअल को रिवॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, if you say that you need to shake hands with the people if you enter in a room, so if you are reinforcing this thing, if you are rewarding the individual, if you are backing him up, so इससे क्या होगा? ये आपका इंक्रीज कर रहा है. so इसको कहते हैं पॉजिटिव स्टिमुलाई. नेगेटिव स्टिमुलाई क्या होगा कि इंक्रीजेस द टारगेट बिहेवियर बाय रिमूविंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस. अब अनप्लेजेंट स्टिमुलस क्या है कि कोई ऐसी चीज जो बिहेवियर में नेगेटिव रोल प्ले कर सकती है, अब उसको रिमूव कर दें. इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल के इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? कोई बताएगा इसकी एग्जांपल रिमूविंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस? सर हमको इस तरह की कंट्रोल एग्जांपल ले ऑफ सकते हैं जिसके ईगर. एक एक करके बताइए जी.
कंट्रोल ऑफ दोबारा। एंगर जो है वो इसमें नेगेटिव में जा सकता है, कंट्रोल ऑफ एंगर भी जा सकता है गुस्से पे इसमें भी। कंट्रोल। जी बिल्कुल। इसके अलावा सर हम इस सर तरह ले इसके सकते हैं कि अलावा हम कोई भी जो हम बिहेवियर करते हैं तो हम कहते हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि हम जब भी काम करते हैं, जैसे कि अब अल्कोहल है तो हम सोचते हैं कि वो yes, पीने से कि हमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो हम नहीं पियेंगे। yes, so you talk about the smoking for example, so you increase the target behavior that you need to avoid smoking by removing it, ठीक है, by leaving the place or by asking the person to go out. So what you are doing, you are increasing the target behavior, कि आपका target behavior क्या है कि you need to avoid smoking, and how you are how you are making, how you are ensuring it by removing the unpleasant behavior. और पनिशमेंट क्या होती है कि आप क्या करते हैं, उसको पनिश करते हैं अगर उसने कोई कमिट किया है कोई इस तरह की चीज, सो दैट ही मे नॉट रिपीट इट, ठीक है, जो भी पर्सन है। सो दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। सो ये प्रिंसिपल्स है लर्निंग के, जिसमें पॉजिटिव स्टिमुलाई था, नेगेटिव स्टिमुलाई था और पनिशमेंट थी। देन दे आर कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग कि किस तरह लर्निंग की जाती है। मतलब अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें, सो व्हाट इज लर्निंग? First, you need to provide attention. So if you need to learn anything, you should be attentive. So it should be, it is called stimuli focus. Like जो भी आपके सारे जो भी आपके nerves हैं, जो आपके सारे senses हैं, वो एक जगह focus हैं. Then you do the retention. What is retention? For example, you read something and then you retain it. And then it is motor reproduction. Motor reproduction क्या होती है कि आप उसको दोबारा बार बार देखते जाएं, रिप्रोड्यूस करते जाएं। एंड देन देयर इज अ मोटिवेशन, रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट जिसको कहते हैं, कि उसके पीछे कोई मोटिवेशन भी हो उसको लर्न करने की, ठीक है, या आपको वो लर्न करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा या कोई अच्छी चीज मिलेगी या कोई इस तरह की चीज हो जाएगी। सो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ योर सोशल लर्निंग, ठीक है। सो आपने इसको इसी तरह लिखना है। पहले हमने इसमें पहले क्या देखे थे कि इसमें आपके प्रिंसिपल्स क्या थे लर्निंग के, अब कंपोनेंट्स क्या हैं लर्निंग के। अभी एग्जांपल देख लेते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी क्या करती है। बिहेवियर फैक्टर्स हैं कुछ, कुछ पर्सनल फैक्टर हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज़ की लर्निंग में रेनफोर्स करते हैं किसी भी चीज़ को। ये मैंने वैसे नेट से निकाल दी थी एक इस तरह के डायग्राम, सो यू कैन यूज दीज डायग्राम्स। सो लर्निंग थ्योरी दी किसने थी? सो लर्निंग थ्योरी वाज गिवन बाय रोनाल्ड एक्कर, ठीक है। इसके अलावा सदरलैंड ने भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया था और वो कंट्रीब्यूशन करने के बाद ये बन गई थी रेनफोर्समेंट थ्योरी, ठीक है। सोशल लर्निंग इसको कह सकते हैं, ये जो सदरलैंड ने दी है ना, इसको कहते हैं रेनफोर्समेंट थ्योरी। अच्छा ये मैं आगे बताऊंगा, इसमें पहले रहने दें, अगर इस पे स्लाइड नहीं होगी सो आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस थ्योरी। So Sutherland in the theory of social differential association theory. So what is differential association theory? We will deal with it. He was the first of 20th century criminologists to argue that criminal behavior was learned, and his theory, the Sutherland theory, modified, remains one of the most influential theory of crime causation. Leave this. So differential association, what is that theory? So its theory suggests that a person who becomes criminal do so because of contacts with criminal patterns and isolation from anti-criminal patterns. So this is what he means by differential association theory. So you associate differentially, like you associate with the persons who are criminals and you isolate yourself from the anti-criminal patterns. So इसमें कुछ 7 पोस्टुलेट बताता है और ये 7 पोस्टुलेट बड़े जो हैं वो रिपीटिव हैं, लेकिन ये मैंने एक बुक से इसके देखे थे, इसके जो पोस्टुलेट हैं, इफ आई हैव रिटन इट डाउन देयर और नॉट, नहीं आपने लिखा है। So Sutherland states that the criminal behavior is learned and learning is a byproduct of interaction. Learning occurs within intimate groups. ये मैं लिख दूं यहाँ पे? सेंस में जी सर लिखते हैं। I think this is not included in the slides. ये कुछ मैंने नोट्स आपने कॉपी करवा लिए थे, वो जो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे। जी सर वो करवा दिए थे सर। वो उसके एक पीछे आप आपने देखें, हाँ सर हमें बताएं नहीं एक मिनट।
आपको लोगों को नहीं मिले? वो उस दिन जो थे लास्ट सर क्लास में जो लोग आए हुए थे उनको करवा लिए थे उन्होंने कॉपी तो? जो थे सबको करवा के दे दिए थे मैंने, जो क्लास में थे। अच्छा, सारों को दे दिए थे जी। जी अरे सर मैंने एक बात पूछनी थी, वो आपने क्लास में शो सर करवाया था ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नहीं मिले सर। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नहीं मिले? तो कोई आप में नहीं से सर। कोई इसमें खुद कंट्रीब्यूट करे और उसको स्कैन करके भेज दे? सर मैं भेज देता हूँ। सर कौन से वाला कह रहे हैं जी, शॉर्ट नोट्स थे जो आपने लिखे थे? शॉर्ट नोट्स तो मैं इनको भेज दूंगा ना, वो तो मैं मेरे पास इसमें पड़े हुए हैं। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है ना वो दे दें। जिसमें सर वो आपने डेफिनेशंस लिखी हैं काफी चीजों की, छोटी छोटी। हाँ जी बिल्कुल। चलो सर मैं सेंड कर देता हूँ। सर एक और आपने लास्ट क्लास में दिखाया था, वो आंसर अटेम्प्ट करने का तरीका, वो भी आपके पास स्कैन था कोई फाइल? वो एक पेपर था मेरे पास, हाँ। स्कैन था सर वो आपके भी नहीं लैपटॉप भेजा? में, आपने दिखाया था वो आपने सर वो भी नहीं सेंड किया। और लास्ट अच्छा, लेक्चर अभी की आप जो, लोग हैं ना इधर चैट में, आप जी सर। चैट में से अभी डाउनलोड कर लें। रुके सर मैं इसकी भेज दूँ चैट ताकि बाद डिसेबल में है मैं मुझे भूल लग रहा। जाता हूँ। चैट डिसेबल है? इसकी शायद चैट डिसेबल है, चेक कर लें शायद इनेबल हो। हाँ, चैट इज डिसेबल। चलें, वो मैं सर को कर दूंगा फॉरवर्ड, सर तो वो बड़ा आप सर टाइम से लग ले गया लें। था, अगर आप अभी कर दें तो आसानी रहेगी। वो फिर सर के पास और अभी भी काफी कहाँ पे वर्क है ना। भेजूँ? सर को ईमेल कर दें, मैं आपको ईमेल दे देता हूँ। मुझे ईमेल बताएं, मैं आपको अभी कर देता हूँ। मैंने वैसे सर को स्लाइड्स वैसे कर दी थी और सर को बुक्स भी ईमेल कर दी हुई हैं सर हमें नहीं आई, लास्ट क्लास। किसी और को अच्छा, आई नहीं है? आई? पता नहीं आप नहीं, लोग। मेरे को नहीं भी नहीं कोई मिली। किसी को नहीं। सर वो बस ऐसे ही ना वो मुझे कोई एक अपना और सर अभी ईमेल तक नहीं बता दे। मिले। सर कोई लिख लें एक ईमेल ईमेल। बता दे जिसको मैं कर देता हूँ फॉरवर्ड। बताएं जी ईमेल। सर मैं एक मिनट यहाँ सर पे आप टाइप एक ही कर किसी देता हूँ। सर आप किसी एक शख्स की ईमेल आईडी ले लें तो उस पर आप सब कुछ भेज दें, नहीं नहीं, आप मैं मुझे सेंड बता कर दें, देंगे। मैं भेज देता हूँ अभी। अभी सही है सर। बता दें, ओरली बता देना, सेंड कहाँ करेंगे, चैट तो डिसेबल है। सर आ रहा है नजर? किधर लिख रहे हो भाई? एक मिनट सर। और वेट, तो राइटिंग ऑन वन नोट, हाँ जी, अली डॉट अर्सल 15। ठीक है जी, नजर आ गया मुझे। अली अर्सल। हाँ जी, ये मैंने ईमेल लिख दी है। इसमें मैं आपको अटैचमेंट्स भी हैं और इसके अलावा लेक्चर भी है और वो पेपर भी मैं इसी के अंदर फॉरवर्ड कर देता हूँ। सर आप मुझे सेंड कर दें, मैं ग्रुप वालों को भेज दूंगा। अच्छा, ये आप चेक करें ना, गूगल ड्राइव के थ्रू जा रही हैं तो परमिशन तो मैंने दी होगी इसमें, अच्छा तो मैं आप देखता हूँ। लोगों को इसमें नहीं करनी चाहिए। सेंडिंग वेट। तो ये जो मैंने हैंड रिटन नोट्स थे उसके पीछे ये कुछ मैंने छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो वो पोस्टलेट्स आपको उसमें से मिल जाएंगे। जी सर। अच्छा, ये कैन एडिट, सो इसके अंदर जो भी लिंक है जिसको भी मिलेगा ही कैन व्यू दिस वन। ठीक है, सो आई हैव शेयर दिस ईमेल। ओके, सो नाउ कम बैक टू दिस। सो इसमें सोशल लर्निंग थ्योरी के जो सदरलैंड ने 7 पोस्टुलेट दिए थे, वो पोस्टुलेट्स क्या थे? वो बज़ाहिर देखने में तो ये लगेंगे कि रिपीटेटिव हैं, लेकिन उसके ये 7 पोस्टुलेट बड़े फेमस हैं। लाइक क्रिमिनोलॉजिस्ट नो अबाउट दी 7 पोस्टुलेट्स। वो क्या है जी? क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न। ये पढ़ने लिखने की जरूरत है या आप लोगों को मिल जाएंगे? मैं लिख देता हूँ। सो क्रिमिनल बिहेवियर इज, so this behavior is learned and learning is the byproduct of interaction। यानी आप क्रिमिनल बिहेवियर को क्या करते हैं? you learn this and learning is the byproduct of interaction and then learning occurs within intimate groups। अब इंटीमेट ग्रुप्स कौन से होते हैं? जी बताएं जी आप लोगों ने
इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ी हुई है काफी। वोकैबुलरी का प्लान, वोकैबुलरी का आपको याद है ना? नहीं सर, मुझे तो नहीं याद। नहीं, वोकैबुलरी आप लोग कर रहे हैं तैयार या नहीं कर रहे? वैसे पूछ रहा हूँ। तो इंटीमेट का मतलब होता है जिसके साथ आप क्लोजली एक्वेंटेड होते हैं, फेमिलियर होते हैं, ठीक है। सो इंटीमेट ग्रुप्स का मतलब होते हैं कि इट कैन बी योर फैमिली, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, और कैन बी एनीथिंग। इंटीमेट का मतलब होता है कि फेमिलियर ग्रुप्स। अच्छा, वोकैबुलरी के लिए ना एक वैसी इधर लिख ले, वो बहुत अच्छी है, मैंने सिर्फ उससे ही किए थे। उसके अंदर है 700 to 800 वर्ड्स हैं। बड़ी अच्छी बुक है, वो है कारवान की वोकैबुलरी बिल्डर। उसके अंदर आई थिंक जी 190 सर। एक्सरसाइज हैं। ये आप लोगों के पास है? नो ये सर। आप लोग ले लें। इसके इसके अंदर ना 190 एक्सरसाइज हैं, और उनका उन्होंने यूज वाला अच्छा दिया हुआ है। मतलब एक पैराग्राफ के अंदर ना ये वर्ड्स आपको यूज हुए मिलते हैं, उसके नीचे उसकी कुछ एक्टिविटीज भी हैं। सो इसमें आप लोगों ने, वैसे इंग्लिश के लिए मैं आपको वैसे एक टिप बता रहा हूँ कि एक एक एक्टिविटी आप डेली की करना शुरू कर दें, उसमें बड़े अच्छे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स यूज होते हैं। और वो वर्ड्स आप देखेंगे कि वही आप जो है, अगर आपको याद हो जाए तो यू कैन यूज इट एनीवेयर, स्पेशली इन प्रेसी। क्योंकि प्रेसी के पेपर में प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन, दीज आर टू मेन थिंग्स जिस पे आप लोगों की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। सो ये बुक आप उसमें देख लीजिएगा। अच्छा, सो criminal behavior is learned. It is the learning is the byproduct of interaction, and it occurs with intimate groups। ठीक है, intimate groups कौन से होते हैं? जो familiar groups होते हैं। And then learning occurs within intimate groups and criminal techniques are learned। ठीक है, अब learning कौन सी हो रही है? criminal techniques की। अब इसमें आप कहेंगे कि बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें तो बड़ी रिपीटिव चीजें हो रही हैं, लेकिन यही चीजें मैंने जो है वो डिफरेंट कोड्स बना के याद की हुई हैं, याद की थी, और these were really helpful। So you can make a code and you can learn it। So criminal techniques are learned and perception of legal codes drives और motivates criminal behavior। मतलब इसमें मैं पहले लिख लूँ, फिर इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये इसका मतलब क्या है इन सबका। perception of legal codes drives criminal behavior। And then we have criminal activity varies in frequency, intensity, priority and duration। Intensity, priority and duration। And the last postulate is criminal learning behavior is same as other learning। Yes। So जिस तरह अदर बिहेवियर लर्न करते हैं, इसी तरह क्रिमिनल लर्निंग बिहेवियर होता है। I will only take one class today because I have a pain in my knee, और अभी बहुत ज्यादा पेन हो रही है, so I cannot bear it। जी सर। क्लास में भी फिर आपने लगता थाई लगाई थी। ऑल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज आगे कुछ ही कम ही रह गई हैं, मेन चीजें हो गई हैं। सो अच्छा, इसमें क्या है कि क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न। सो वी लर्न क्रिमिनल बिहेवियर एंड इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन एंड द लर्निंग अकर्स इन इंटीमेट ग्रुप्स। तो इसके 3 पोस्टुलेट्स आ गए जो कि क्या है क्रिमिनल लर्निंग पे। कौन कौन से है जी? क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न एंड इट इज द बाय लर्निंग इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन एंड इट अकर्स इन इंटीमेट ग्रुप्स। अच्छा, उसके बाद है क्रिमिनल टेक्निक्स आर लर्न। क्या चीज लर्न की जाती है? क्रिमिनल टेक्निक्स आर लर्न। इसको 4 कर लें। सो 4 थिंग्स आर रिलेटेड टू लर्निंग। सो क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न,
and learning is the byproduct of interaction, and learning occurs in intimate groups, and what things are learned, criminal techniques are learned. तो ये 4 चीजें, जो 4 चीजें हैं वो related हैं learning से. And then perception of legal code drives criminal behavior. ठीक है, यानी जो perception है criminal code की, अब criminal code की क्या perception है? For example, if I break a signal, so what is my perception? My perception is that I will not be penalized. Or if I'm using a car of other province, so how the authority, जो इसकी authority है, digital authority, जो मुझे चालान send करेगी, how the authority can send me the चालान, because he cannot monitor me. So ये मेरा perception है. ठीक है. क्रिमिनल इंटेंसिटी वेरीज इन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, प्रायोरिटी एंड ड्यूरेशन. के क्रिमिनल इंटेंसिटी कई दफ़ा ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी, लाइक समटाइम्स इट इज़ रिपीटिव, समटाइम्स इट इज़ नॉट. इंटेंसिटी के इसकी जो इसका जो इम्पैक्ट है, इफ इट इज़ मोर और लेस. प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी की बात की जाती है, ड्यूरेशन की बात की जाती है. एंड क्रिमिनल लर्निंग बिहेवियर इज सेम एज अदर लर्निंग बिहेवियर. सो आई थिंक दीज पोस्टुलेट्स आर नॉट डिफिकल्ट टू मेमोराइज. आप इसको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं. ठीक है. Is there any confusion in this? सर इंटेंसिटी में हम लोग इसका जो क्रिमिनल की Now इंटेंसिटी है इसमें उसको differential लेंगे, association उसके theory, इफेक्ट्स होंगे. जो Sutherland is in the idea that criminal activity is learned. वही जो चीजें मैंने postulates बताई हैं. Majority of learning occurs in author, वो तो लिखा हुआ है इसके अंदर सारा. In intimate groups, and these behavior may be socially acceptable, or they may be deviant. And Sutherland develops concepts to assist in understanding how differential association vary in terms of quality and strength. So what are the characteristic feature of this theory? The focus is on the importance of frequency, कि कितनी दफा उसको किया जाता है. Duration, the length of time one is exposed to ideas. Priority, the extent to which people are exposed to learning at early stages of their development. And intensity, the importance to the potential delinquent of the individual from where he is or she is learning. So this is the focus जो है सोशल लर्निंग का, कि फ्रीक्वेंसी, वो कितनी दफ़ा रिपीट किया जा रहा है जो वो लर्न कर रहा है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कि कितने टाइम के लिए वो एक्सपोज हुआ है. प्रायोरिटी क्या दे रहा है, कि द एक्सटेंट टू विच पीपल आर एक्सपोज टू लर्निंग, कि कितनी वो उनका एक्सटेंट है एट अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट. एंड इंटेंसिटी, द इम्पोर्टेंस टू द पोटेंशियल डेलिक्वेंट ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम ही और शी इज लर्निंग, कि जो उसकी इम्पोर्टेंस है उस डेलिक्वेंट उस पर्सन की जिससे वो एक डेलिक्वेंट लर्न कर रहा है किसी भी चीज को. अच्छा, ये सारा कुछ वही है. अब चैलेंज, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे पोस्टुलेट्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं. So one of the most important criticism of the theory is based on the concept of causality. How do youth come to associate with a criminal element? They may seek them out for social support and understanding. By focusing on behavior, theories ignore or deny the influence of social structure. Like, what is the social structure? All learning approaches need to incorporate an analysis of the influence of the social environment on the process of learning. ये खाली ये learning पे behave कर रहे हैं, they are not concentrating on the social environment, कि वो किसी ऐसे environment में है कि वहाँ पे learning available है, या learning वो क्यों कर रहे हैं learning, ठीक है? What is the impetus behind the learning? तो ये चीजें जो है ये उसके क्रिटिसिज्म में आ जाती हैं. ये सारी लर्निंग थ्योरीज में है. अब बिहेवियरल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम, डायरेक्ट पेरेंटल कंट्रोल, इसको छोड़ दें. तो इसमें कौन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए पेरेंटल एफिशिएंसी में देखा जाए, तो फिर ये डेलिक्वेंट बिहेवियर निकलता है कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ग्रैंड पेरेंट्स लैक पेरेंटिंग स्किल्स, सिंगल पेरेंटिंग, डिफिकल्ट चाइल्ड, हाई क्राइम नेबरहुड. Parental efficacy, supervision of child lacking, failure to recognize saving index, or inconsistent or poor use of reinforcement and punishment. वही चीज जो पहले बता दी गई है. अब ये शिकागो स्कूल की थ्योरी क्यों कहते हैं? बिकॉज द साइंटिस्ट वर लिविंग इन शिकागो, और उस वजह से उसको शिकागो स्कूल ऑफ थ्योरी कहते हैं. सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, आई थिंक वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. तो ये आपकी जो है ये सारी थ्योरीज मेन खत्म हो गई हैं. अब छोटी छोटी थ्योरीज रह गई हैं जिसमें लेबलिंग थ्योरी है, ठीक है,
स्ट्रेन थ्योरी है और सोशल कंट्रोल थ्योरी है, जो कि मैं अब आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। आज कितनी ही क्लास थी हमारी। अब इसमें आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो पूछ लें मेरे से। सर ये जो इंटेंसिटी आप बता रहे थे, ये इसमें क्रिमिनलिटी हेलो की इंटेंसिटी आएगी या जो उसके इफेक्ट्स होंगे उसकी इंटेंसिटी आएगी? जी, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो तो नहीं गए सारे? सर आपको आवाज नहीं आ रही? आपको आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो हेलो सर। आवाज आ रही? हेलो जी, अब आवाज आ रही है। सर, मैं पूछ रही थी कि इंटेंसिटी से यहाँ क्रिमिनोलॉजी में हम लोग क्रिमिनलिटी की इंटेंसिटी लेंगे या जो उसके इफेक्ट्स होंगे सोसाइटी पे उसकी इंटेंसिटी को काउंट करेंगे? इंटेंसिटी का मतलब ये है कि हाउ इन्फ्लुएंशियल द पर्सन इज फ्रॉम विच अ पर्सन इज लर्निंग, कि एक पर्सन जो है उसका जो लर्न कर रहा है ना किसी भी चीज से, वो ग्रुप कितना इन्फ्लुएंशियल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उससे इंटेंसिटी की बात आती है। कि अगर उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो लर्निंग की वो ज्यादा होगी, अगर उसका इन्फ्लुएंस कम है तो लर्निंग की इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, ये आज की हमारी क्लास थी, ठीक है। मैं डबल लेनी थी लेकिन मेरा ना इतना स्टेमिना नहीं होता इतना बोल बोल के कि 3 घंटे में मुसलसल बोलते रहूं। तो अभी हमारे पास काफी टाइम है, इंशाल्लाह वी कैन इजीली कवर इट। सो दिस वाज आवर थर्ड क्लास, ठीक है। तो इसमें हमारी तकरीबन सारी थ्योरीज हो गई हैं, छोटी छोटी थ्योरीज रह गई हैं, वो 15-20 मिनट का काम है बस। तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले खत्म कर लेंगे और फिर we will start the next portion and I will give you some assignments for the question paper of section 1 and then we will discuss all the past paper questions जो section 1 के हैं, ठीक है। जी So you सर। can एक्सक्यूज मी सर। सर स्वान सर। हेलो, हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर आपने जो ईमेल किया उसमें बस 4 फाइल्स हैं। उसमें क्या है, सॉरी? सिर्फ 4 पीडीएफ फाइल्स हैं सर, और तो कुछ नहीं हाँ, है। 4 पीडीएफ फाइल है ना उसमें, वो 2 बुक्स हैं, एक लेक्चर है और एक वो पेपर था। और सर आज वाला लेक्चर सेंड था उसमें? वो उसी में ही है, लेक्चर 2 में ही है, वो पूरे पीडीएफ उसी के अंदर है सारा कुछ। ओके 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 सर, थैंक यू। सर सर आपके पास केस स्टडीज हैं? जी बताएं। सर आपके पास है केस स्टडीज? नहीं, मेरे वो भी पास सेंड केस कर दें। स्टडीज थी लेकिन वो ना, अब मैं चाहता हूँ आप लोग खुद करें कुछ इसमें पहले। आपको मैं दे दूंगा एट द एंड, अगर आप लोगों से ना हुई, पहले तो खुद तो करें ना कुछ। मैं आपको सारा कुछ चलिए ठीक लिखने है के सर, लिए नहीं कह रहा, इंशाल्लाह आप लोग हम मेहनत कोशिश। करें थोड़ी सी, इससे आप खुद करेंगे तो आपको याद रहेंगी ना, आपको पता लगेगा कि कैसे करनी है। इसमें मेन चीज यही है बस, जी और ठीक कुछ नहीं है। ओके जी, जी सर, ठीक है सर, है। करते ओके हैं। सर, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर।